Gobi sir, good morning, sir. Kah lodal hai na. Gobi sir, good morning. Good morning, sir. Good morning. So, thank you. Can I start, sir? Good morning, sir. Please start, sir. Okay, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, friends. Good morning, all of you. Welcome to all of you today. Our Visual Basic for Applications, VBA virtual online class. Sound. Okay, friends. So before starting my today lecture, as usually, I'm telling the vote of thanks to all my departments, staffs. In the same way, once again, I want to thankful to my DGT Director General of Training, DG Madam, Director General, and IT department staff members. They were provided this type of environment to conduct the virtual classes for our students. सबसे पहले मैं हमारा DGT डिपार्टमेंट, DG मैडम एंड टेक्निकल IT सेल स्टाफ को मैं सबसे पहले धन्यवाद बताना चाहता हूं, ताकि इन दिनों में पूरा भारत में लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो लागू है, तो आप लोगों स्टूडेंट्स अपना घर पर बैठे, हम यही विश्वास कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई को फिर हम आगे बढ़ाने के लिए साथ साथ रिमाइंड करने के लिए ये virtual classes, online classes का मुख्य उद्देश्य है. And also I was thankful to NIMI staff members, Director Dingri sir and all the technical staff officers. They are also providing their services voluntarily to success this virtual classes. Students, please, one thing to all my trainees who are joined, you please remember one thing. आपका क्लास के बारे में एक नेटवर्क है, एक तो हमारा DGT डिपार्टमेंट एंड IT सेल, साथ साथ निमी डिपार्टमेंट है. इसके अंदर जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, मॉर्निंग 9 o'clock से शाम को 8 बजे तक they are giving their services voluntarily. So once again, I am thankful to all these staff members and also thankful to my host staffs who are cooperated to success these classes, like V. Babu sir Indore, Raju Kannan sir Bangalore, Karnabhai sir Hyderabad, Rinku madam Jaipur, Tulika madam Panipat, Sanjay sir Vadodara, Hemlata madam Indore, Jyoti Bhandari madam Mumbai, Sam Sivara sir Mumbai, Sarika madam Allahabad, Vendram Niyogi sir Kolkata, Gaurav sir Tura, and thanks to today who are joined classes. Sir, they giving their cooperation to sharing this meeting I do to their trainees and motivated to join this class. So due to that reason, I am humbly thankful to all my staff members, as well as my special thanks to my students. So you are also encouraging me, you are joining. So due to that purpose, your cooperation will encourage to me. And due to that reason, I am conducting the classes daily and preparing new topics and lessons. So friends, myself, D.A. Gurulu,
vocational instructor 9015983271. This is my mobile number. gurunvt@gmail.com is my email ID. And I also my special thank to my NSTA Noida Swati Seth madam and principal Sasimadhuri madam and all my staff. They are given permission to conduct these virtual classes. This today lecture, Visual Basic for Applications, is delivered from National Skill Training Institute for Women, Noida, through NIMI Zoom app. So friends, in last class we have discussed about the procedures and functions. Today in our class we will discuss the practical sections. आज के क्लास में हम practically discuss करेंगे. लेकिन before entering into the practical section, just I want to give a little bit recap. Practical section में प्रवेश करने से पहले मैं थोड़ा बहुत recap देना चाहता हूं मैं. ठीक है, प्रोसीजर के बारे में हमने डिस्कस किया. VBA के अंदर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एट अ होल मींस एक ही साथ सबसे इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियली हम एक जगह पर मतलब एक कोडिंग के अंदर लिखने के तरीके को कहते हैं हम प्रोसीजर. A procedure are a group of statements execute as a whole. As is execute a group of statements executed whole. ये ऐसे multiple choice में पूछते रहते हैं एग्जाम. Then you can select the procedure. So which one is execute a group as a whole? नीचे function, procedure, program, कुछ चलो loop. Select the procedure. The task performed can be very simple or task. Procedure से हम छोटे-छोटे task को follow कर सकते हैं या complicated भी कर सकते हैं. ये it is a good practice to break down your complicated process into smaller ones. अगर आपका पास एक बड़ा टास्क है, प्रोजेक्ट शेड्यूल है, तो pieces wise आप आसान प्रॉपर वे में क्वालिटी अचीव कर सकते हैं. कंपाइलिंग वगैरह करते समय पर डिबगिंग, ठीक है, कोडिंग लिखते समय पर एक जगह से दूसरी जगह पर सारे कोडिंग एक ही मतलब फाइल के अंदर एक ही प्रोग्राम के अंदर लिखने के वजह से क्या होता है कंफ्यूजन्स. व्हाट आर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएगा. सो वेरिएबल कौन सी वेरिएबल किस काम के लिए यूज में लिया आपने, काम में लिया, फिर याद करने में दिक्कत. इफ योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर इंक्रीज्ड देन प्रोग्रामर आल्सो हैविंग सम लिटिल बिट कंफ्यूजन. इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अपना प्रोग्राम pieces wise divide कर सकते हैं. Small is called as here in there are two types of procedures are there. One is sub procedure, second one is the functions. In other languages we are maximum everyone learn about the functions. बाकी C++ बाकी लैंग्वेज में क्या functions का बारे में functions दोनों भी है. Execute all the statements which are written in between the sub procedure and procedure. अगर आप VBA के अंदर प्रोसीजर लिखना है तो sub space procedure, sub is the keyword you are using to create a procedure, and sub automatically Excel VBA will generate it whenever you start a procedure. प्रोग्राम के अंदर VBA के अंदर सब प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए सब स्पेस XYZ ABC लिखने के बाद ऑटोमेटिकली एंड सब अपने तरफ से ऐड करते रहते हैं. सब प्रोसीजर either returns from recording a macro or resulting in the creation of a macro. मैक्रो द्वारा भी आप प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हो या तो खुद ही लिख सकते हो. क्रिएशन ऑफ प्रोसीजर्स, द कीवर्ड सब इज यूज्ड टू क्रिएट ए प्रोसीजर. हमने डिस्कस किया है. सब कीवर्ड को काम में लेते हैं, सबका आगे स्पेस लिख के कुछ भी लिखो, कंपाइलर के इंटरप्रेटर को ये पता चलता है यूजर वांट टू क्रिएट ए प्रोसीजर. तो प्रोसीजर नाम टाइप करके एंटर दबाने के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग अपना तरफ से जोड़ देगा. 1 2 3 फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को आप लिख सकते हो. एंड सब ऑटोमेटिकली generated by the VBA. That means what I'm telling here, you can write your coding in between sub procedure and end procedure. Sub procedure and end procedure के बीच में जितना भी लाइंस आप लिखना चाहते हो वो इस प्रोसीजर के अंदर आप 1 by 1 लिख सकते हो. एग्जीक्यूशन 1 by 1 करेगा. क्रिएशन ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर लिखने के लिए तरीका क्या है, डेवलपर पर जाना है, विजुअल बेसिक पर क्लिक करना है, शीट 1 और शीट 2 या तो इस वर्कबुक पर डबल क्लिक करने की वजह से विजुअल बेसिक एडिटर स्क्रीन को देख सकते हो. What is the procedure? First of all, you click on the developer tab. Then after that, you click on the Visual Basic tab. Then sheet 1, sheet 2, या तो this workbook
So these things anyway, विजुअल बेसिक एडिटर शीट 1 पर डबल क्लिक किया, सीधे आपको विजुअल एडिटर पर लेकर जाएंगे. Alt plus F11, then also it will open the Visual Basic Editor. Then this is the example. अब इस एग्जाम्पल को देखिए, हम साथ साथ MS Excel पर इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने कहा आपको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आसान तरीके से. Okay, so now friends, what I'm telling here, so in this app we can share one thing only at a time. So we will write these things to our coding. To message box we are writing simply one procedure sample. My name is Vandana and my name is so and so. Sorry, welcome to VBA coding. Name Vandana, trade Copa, Institute NST for Noida. How to run that particular procedure? आपने procedure लिखा है, सेव किया, मान लीजिए, execute करना है, रन करना है. रन करने के लिए क्या करना है? put the procedure and end procedure. सब procedure और end procedure के बीच में कर्सर कहीं भी रखिए. Click on run symbol, green button symbol from Visual Basic और की फंक्शन की से फंक्शन की 5 भी आप रन कर सकते हैं. 4 मैसेज बॉक्स हम यूज में लिया है, सो इसलिए वेलकम टू VBA कोडिंग. ओके, देन माय नेम इज वंदना, सेकंड बॉक्स कंप्लीट. अगर ओके पर क्लिक किया तो थर्ड बॉक्स माय ट्रेड इज कोपा, देन अगेन ओके पर क्लिक किया तो विच इज इंस्टीट्यूट. समटाइम्स सम स्टूडेंट्स आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ सेविंग देयर VBA फाइल्स इनटू देयर सिस्टम. कोडिंग लिखने के बाद उस फाइल्स को सेव करने में तो कुछ कई बार क्या रन करते समय पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग. तो दैट टाइम इट गिव्स ए मैसेज लाइक दिस मेक द मैक्रोस इन दिस प्रोजेक्ट आर डिसेबल. ये वर्कबुक के अंदर, इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर उसको डिसेबल किया है, इसलिए मैं ये रन नहीं कर पा रहा हूँ. तो ओके पर क्लिक कीजिए, क्रॉस बटन दबा दीजिए, फिर इसका ऐसे रेक्टिफाई करना है. सो डेवलपर पर जाने के बाद बेसिक का पास में एक मैक्रोस के अंदर थर्ड स्टेप क्रिएट मैक्रो यूज बाय रिलेटिव रेफरेंस के अलावा नीचे है. सो मैक्रो सिक्योरिटी डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फिर एनेबल ऑल मैक्रोस होगा, सेलेक्ट करिए एनेबल ऑल मैक्रोस, देन ओके. हियर इन बॉटम साइड OK tab is there. After selecting that one, you can simply click on the OK tab. Then your macros are enabled. Save your file, workbook file, close it. Again, open the same workbook. Then try to execute. It will be executed. पहली बार आपको रन नहीं हो पाया है क्योंकि मैक्रो डिसेबल होने के कारण से, लेकिन डेवलपर पर जाके विजुअल बेसिक पास में बगल में एक मैक्रोस नाम से ऑप्शन में थर्ड वन मैक्रो सिक्योरिटी क्लिक करके एनेबल किया आपने, ओके किया, सेव करके दोबारा क्लोज कर ओपन करने की वजह से, क्लोज करके ओपन करने की वजह से आप अपना प्रोसीजर्स को VBA सारे कोडिंग्स को आप रन कर सकते हो. वो तो सिंपल मैसेज बॉक्स था, फर्स्ट वन. सेकंड वन देखिए, मैसेज बॉक्स के अंदर हमने क्या किया है, इनपुट बॉक्स से रीड कर रहा हूँ वो तीनों चीज को, ठीक है. फिर उसको क्या करते हैं हम, इनपुट बॉक्स द्वारा रीड किया गया नेम ट्रेड इंस्टीट्यूट को वेरिएबल के अंदर रखा है, फिर इसको प्रिंट कर रहे हैं. ये सेकंड प्रोसीजर, सब एग्जांपल 2 एंड सब. तो इसको रिजल्ट क्या देख सकते हैं हम, उसी मैसेज बॉक्स के अंदर माय नेम इज आगे वंदना जो भी देता आप, पूजा या तो राजेश वगैरह. सो ट्रेड कोपा का जगह पर CSCA, IBM, व्हाटएवर इट मे बी, इंस्टीट्यूट NST हैदराबाद, NST चेन्नई, NST बैंगलोर, रैंडमली यू कैन गिव एनी इंस्टीट्यूट नेम, देन माय इंस्टीट्यूट इज, वो डिस्प्ले कर देता. थर्ड एग्जांपल, इनपुट बॉक्स से 3 वेरिएबल्स को रीड करना, नेम ट्रेड इंस्टीट्यूट, देन इस डाटा को कर रहे हैं वाया प्रोसीजर द्वारा. असली में क्या, इन दिस प्रोसीजर वी आर नॉट यूजिंग एनी कमेंट बटन, इवेंट मतलब बटन का ऊपर नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर लिख रहे हैं कोडिंग, ठीक है ना. सो वी कैन क्रिएट द बाय यूजिंग मैक्रो रिकॉर्डर process, or you can create your own by with the help of sub reservoir keyword. sub का आगे कुछ भी लिखिए XYZ ABC, then you can write the number of statements and sub, then you simply run execute this. So dim SNAME trade institute, आपको पता है dim is used to create variables, you know SNAME trade institute string variable declare किया है तो मेमोरी रैम के अंदर क्रिएट करेगा. फिर की इनपुट बॉक्स हम रीड कर रहे हैं SNAME ट्रेड इंस्टीट्यूट ने, फिर
अब वेरिएबल्स का अंदर है दिया गया नेम एंड ट्रेड इंस्टीट्यूट नेम, उन एक्सेल शीट पर प्रिंट कर रहे हैं रेंज A1, ये कॉलम फर्स्ट रो पर प्रिंट करेगा वेलकम टू VBA कोडिंग, वही ए कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड रो पर प्रिंट करेगा, B2 मींस सेकंड कॉलम सेकंड रो एस नेम योर नेम, जो नेम आपने कीबोर्ड से टाइप किया वो डिस्प्ले करेगा। A3 के अंदर ये वो ट्रेड, फिर B3 नेक्स्ट कॉलम में ट्रेड प्रिंट कर देता है। तो कल दिखाया मैंने ये रहा, अगर आपने रन करते समय पर नेम की जगह पर विमल कुमार, ट्रेड की जगह पर CSC, इंस्टीट्यूट की जगह पर हैदराबाद दिया मान लीजिए, तो वो डिटेल्स एक्सेल शीट पर प्रिंट किया है ताकि इस कोडिंग द्वारा है, कोडिंग का द्वारा हमने एक्सेल शीट पर प्रिंट किया। You can call a procedure in a VBA coding. Actually क्या है, एक प्रोसीजर का मुख्य उद्देश्य क्या, हेवी क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सब डिवाइड करना पीसेस वाइज। दूसरी बात, एक बार एक प्रोसीजर लेकर आए तो आप उसको अपना कोडिंग के अंदर जब मर्जी तब यू कैन यूटिलाइज योर प्रोसीजर wherever your need, whenever and number of times। अब जितनी बार आप उस प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो प्रोसीजर को कॉल, दैट इज द मेन एडवांटेज। प्रोसीजर विद नंबर ऑफ टाइम्स, ये लाल कलर में you can call a function or procedure anywhere and any number of times। फंक्शन को प्रोसीजर को जितना बार चाहिए उतना बार आप कॉल कर सकते हो, रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, सो हियर देखिए फ्रेंड्स, सो दूसरा मेन प्रोसीजर मेन लिखा हमने मैसेज बॉक्स के अंदर वेलकम टू VBA कोडिंग, देन एग्जांपल को कॉल करना है फर्स्ट को, ये प्रोसीजर है। फिर कंट्रोलर इस प्रोसीजर मेन से बाहर आके एग्जांपल नाम से, ये तो सैंपल नाम से, एग्जांपल नाम से प्रोसीजर है क्या ढूंढेगा, अगर वो है तो उसको एग्जीक्यूट करके फिर वापस इसी मेन प्रोसीजर के अंदर आ जाए। फिर इसी तरह सेकंड थर्ड लाइक दैट। फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। A function is a group of reusable code which can be called anywhere in your program। So what is the main difference between the function and procedure? Procedures cannot return a value but functions can return a value, that is the main thing। फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद फंक्शन के अंदर वैल्यू को हम मेन प्रोग्राम के अंदर लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात, फंक्शन लिखने के टाइम पर सबका जगह पर फंक्शन कीवर्ड यूज करना है। एंड फंक्शन, स्टार्टिंग में फंक्शन स्पेस फंक्शन नेम, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एंड फंक्शन। So this eliminates the need of rewriting the same code over and over again। प्रोसीजर एंड फंक्शन से क्या कर सकते हैं, एक कोडिंग को बार-बार लिखने के वजह से एक ही बार लिख के हम काम में ले सकते हैं। This enables the programmer to divide a big program into a number of small and manageable functions। अपना जो हेवी लेंथी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं आप, एक स्मॉल मैनेजेबल वाइज है, छोटे-छोटे फीचर्स वाइज सब डिवीजन करके फंक्शंस का द्वारा, प्रोसीजर का द्वारा अपना प्रोग्राम को, क्रिटिकल टास्क को आसान से मैनेजेबल मींस हैंडल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इनबिल्ट फंक्शंस, मतलब एक्सेल के अंदर MS ऑफिस तरफ से, एक्सेल सॉफ्टवेयर तरफ से दिया गया फंक्शंस है रेडीमेड फंक्शंस, लॉजिकल, टेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, statistical functions, so many different types of functions are there। sum, minimum, average, maximum, ये तो सब जानता भी जानता है। कोपा, CSA, DTP का अलावा जो ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग भी जानते हैं एक्सेल के अंदर सम रेडीमेड इनबिल्ट फंक्शन है, सम या तो एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम इत्यादि। जो स्टूडेंट्स है डीपली जानते हैं टेक्स्ट फंक्शंस, डेटाबेस फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उन फंक्शंस को कहते हैं हम इनबिल्टेड फंक्शंस। उसके अलावा VBLS to create or write user defined functions, हम अपना जरूरत के अनुसार, टास्क का अनुसार फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये बार बार ये बता रहा है, तो फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं वैल्यूज को, एक से अधिक वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकते हैं। फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू आल्सो, ठीक है। So then friends, before using a function we need to define that particular function। फंक्शन को काम में लेने से पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। क्रिएशन, the most common way to define a function VB is using by function keyword। फंक्शन कीवर्ड लिख के फंक्शन नेम लिखना है, फिर एंड फंक्शन, बीच में सेंटेंस। तो फंक्शन ने पैरामीटर लिस्ट, प्रोसीजर में पैरामीटर लिस्ट नहीं होता, ये पैरामीटर लिस्ट लिखते ब्रैकेट के अंदर, फिर स्टेटमेंट 1 2 3 फिर अप टू एंड। बिकॉज़ व्हाई आई एम गिविंग दिस क्विकली, वी वांट टू एंटर इनटू द प्रैक्टिकल सेक्शन एज वेल एज वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस थिंग्स इन लास्ट क्लास। यस्टरडे मींस कल का क्लास में हमने सारे डिस्कस किया है। मैं अभी 2 मिनट के अंदर प्रैक्टिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं। So function samples, message box, my details and function, welcome to VBA function। So here details is one of the function,
So we can define the outside. ये main function सब procedure है. Function details. Then message box के अंदर name, फिर trade, then वही चीज institute. देखिए my name is मोहिनी मिश्रा. VB new line means message box के अंदर दूसरे लाइन में trade कोपा. फिर VB new line होने के कारण से नीचे से for women. फिर VB new line के कारण से फिर नीचे आके D1 sector 1 नोएडा. फिर VB new line. ये प्रिंट करने के बाद कंट्रोलर वन सेकेंड गो टू द मेन प्रोग्राम. इसका आगे जो लिखा है मैसेज बॉक्स वो भी डिस्प्ले कर दे. देखिए माय डिटेल्स आर ओके. देन माय नेम इज मोहिनी मिश्रा जो भी वो डिस्प्ले करे. फिर वेलकम पीए फंक्शंस. सो नाउ विल एंटर इनटू और प्रैक्टिकल सेक्शन. Please wait 2 minutes. I want to open MSL for practical purpose. For our convenience purpose means what I'm doing here in backend, I'm copying that files into MS Excel because we want to implement the same coding, okay, in our MS Excel. So don't create any confusion. जो समझा है आपको वही चीज में practically implement करना चाहता हूँ मैं. Please wait 1 or 2 minutes. क्योंकि दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो नहीं सकते इसमें. I copied 2 programs and last third one with the help of range command. Is also completed. Any other program is there? This is the sample 1. Friends, are going to the section, practice section. I think you people have seen my screen. Maybe sir, my screen was sharing. दिख रहा है sir. Okay sir, sometimes now. Now friends, sorry for the late. So why I'm giving the late? So what are the programs I sent through my presentation? जो presentation के अंदर जो programs मैंने दिखाया है उस programs को ही मैं आप लोगों का सामने implement करना चाहता हूँ. देखिए MS Excel ओपन किया है. सो VBA के अंदर कोडिंग लिखने के लिए शुरू से हम सुन के आ रहे हैं डेवलपर पर जाना है. सो विजुअल बेसिक फ्रेंड्स प्लीज ऑब्जर्व हियर. So then you can look at here. These are the all means sheets are available. So
we want to remove all these things. So what is the suppose my means I want to save this file in a separate workbook, then apply right click, move or copy, then set new workbook मैंने set वो सारे बाकी शीट. So now क्या कर रहा हूँ, देखिए बुक 1 मैं सेव कर सकता हूँ. सेव एज करते समय पर जिनको अभी VBA फाइल्स का नहीं पता चल रहा है, प्लीज कृपया मेहरबानी से देखिए. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट टाइम आई वांट टू सेव माय फाइल ordinary MS Excel workbook as a VBA file. Then what can I do? After opening my Excel, doing some experiment, typing whatever it may be, if I want to save this workbook as a VBA, then simply click on the office ribbon or file menu, then select save as or save. First time both are equal, then you can give any file name. Suppose now we are discussing about the functions or procedures. So functions, file name, then save as type, click here. Agar no problem, if you are click na, then it can ask some questions. Now at this moment it cannot ask because we are not entered any VBA coding. अगर इस हालत पर हमने डायरेक्ट सेव किया तो साधारण वर्कबुक माना जाते हैं, लेकिन VBA फाइल जैसे हम स्टोर करना है तो एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, यू प्लीज सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन. अब दिक्कत लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हिंदी वाले सुनिए प्लीज. अगर मान लीजिए पहली बार एमएस एक्सेल आपने टाइप किया है, तो टाइप करने के बाद आप VBA के अंदर स्टोर करना चाहते हो इस एक्सेल फाइल को कोडिंग के साथ एज ए VBA फाइल, देन क्या करना, उस समय पर फाइल मेन्यू पर जाइए, नहीं तो ऑफिस रिबन पर जाइए, फिर सेव एज या तो सेव, देन यू कैन गिव एनी फाइल नेम टाइप करिए. सपोज मैं आज का क्लास में फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, तो फंक्शंस, देन आफ्टर दैट इसका बाद क्या करना है, नीचे टैब देखिए सेव एज टाइप, फिर इसमें क्लिक करिए, सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, दूसरा ऑप्शन को एक्सेल मैक्रोस एनेबल वर्कबुक. आपको पता है IT स्टूडेंट ये डॉक्यूमेंट में स्टोर कर रहा है जिस PC, अगर आपको डेस्कटॉप में स्टोर करना तो ये तो आप मैनेज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर करके सेव. अब मैं इतना दिखाना चाहता, फंक्शंस नाम से सेव हो गया, टाइटल बार पर टाइटल डिस्प्ले किया हुआ है. अब VBA कोडिंग फंक्शन प्रोसीजर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. सब इज यूज्ड टू राइट ए प्रोसीजर, क्रिएट ए प्रोसीजर. डेवलपर पर गया मैं, विजुअल बेसिक पर क्लिक किया. तो देन 1 minute, I saved this one functions. I want to close that one. ये stop कर रहा हूँ मैं, इस फाइल को क्लोज कर दूँ, ओपन कर दूँ. Want to remove your means confusion. सारे confusion को हटाना चाहता हूँ मैं. हमारे पास वो पुराना फाइल में क्या है, बहुत सारे कोडिंग पड़ा हुआ है. अब एक्सेल फंक्शंस, डेवलपर, विजुअल बेसिक, आप देखिए बाकी चीज तो दिखाई नहीं दिया, एक ही शीट में इसके अंदर सेपरेट किया हूं. शीट 1 है तो रीनेम कर सकते हो शीट 1 और शीट 2 बाय. सपोज इस पर डबल क्लिक कीजिए, मेरे कहने का मतलब, आई थिंक इट इज ऑब्जर्व, डबल क्लिक, मैंने शीट पर डबल क्लिक किया ना, तो वर्कबुक पर भी डबल क्लिक कर सकते. दिस वन इज विजुअल बेसिक एडिटर. रोबी सर, इट इज सीन सर डिस्प्ले. क्लिप వస్తుందా ఇది? हेलो रोबी सर, सोनिया चौधरी, it is means VBA कोडिंग स्क्रीन इज विजिबल, दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है सर. ओके सर, मैंने चेंज कर लिया ना सर दूसरा फाइल, इसलिए समटाइम्स ना प्रॉब्लम्स. ओके, सो नाउ हमने एक्सेल शीट पर जो लिखा है फर्स्ट प्रोसीजर, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ. ये देखिए सब प्रोसीजर, सब लिखा मैंने सेम. मैसेज बॉक्स के अंदर वेलकम टू VBA कोडिंग, देन सेकंड मैसेज बॉक्स के अंदर माय नेम इज वंदना, थर्ड मैसेज बॉक्स के अंदर माय ट्रेड, फोर्थ माय इंस्टीट्यूट NST नोएडा. सब अगर देखिए आपका सामने भी सब जेड एंटर किया,
सो क्या हुआ, एंड सब अपना आ गया, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ये बीच में कर्सर है, आप इस कर्सर के बीच में कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको कंफ्यूज अवॉइड करने के लिए जो प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाया वही कोडिंग लिख रहा हूँ। अब मैं इसको रन करने के लिए सब सैंपल और एंड सैंपल के बीच में कर्सर रख के रन कर रहा हूं मैं। अब देखिए ये आ गया मेरा स्क्रीन पर, वेलकम टू VBA कोडिंग, देन माय नेम इज वंदना, ओके, देन माय ट्रेड इज कोपा, देन माय इंस्टीट्यूट इज NST फॉर वुमेन नोएडा। बस मेरा, तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए, सब स्पेस कुछ भी लिखिए, XYZ PQR your name something, then you can write the VBA statements, then after that finish with end sub already है, so आप कर्सर बीच में रख के आप रन कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया हमने, सेकंड प्रोसीजर हमने देखा है। तो सेकंड प्रोसीजर में क्या है, सेकंड एग्जांपल में उसी डाटा को हमने मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करने से पहले इनपुट्स बॉक्स द्वारा डाटा को रीड किया है। सो फिर दूसरी प्रोसीजर लिखने के लिए SUB सब SJMPLE sample2, देखिए एंड सब ऑटोमेटिकली आ गया। फिर उधर से मैं लेकर आया हूँ, डाटा को कॉपी किया, सब सैंपल, चलो ये सैंपल डाटा दे मैंने, SNAME ट्रेड इंस्टीट्यूट एज स्ट्रिंग, SNAME इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम। अगर आपको डाउट है तो SNAME इज इक्वल टू इनपुट इन द ब्रैकेट क्लोज एंटर नेम, ठीक है। फिर यूज, अगर आपको अभी आपके सामने लिखना है तो क्या कर रहा हूं मैं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बस, लिखते रहिए। ट्रेड किया हमने, एंटर ट्रेड पूछेंगे कीबोर्ड से रैंडमली रीड करने के लिए, वेरिएबल नेम चेंज करना जरूरी है, तो ट्रेड जो वेरिएबल हमें पड़ेगा। फिर इंस्टीट्यूट जो भी लिखा ऊपर, इंस्टीट्यूट ये भी चेंज करना। So in last class, one of the student is asked, sir, today class I cannot understand because entire program. So that purpose, I am giving the practical section. Please observe on the screen. आप कृपया मेहरबान से देखिए, सॉरी मैं इसको प्रिंट करना है हमें, ये तो रीडिंग हो गया। अब प्रिंट करने के लिए क्या है, मैसेज बॉक्स को काम में ले रहा हूँ। सो मैसेज बॉक्स का द्वारा प्रिंट करते हमें पता है, देखिए लिख रहा हूँ मैं MSGBOX ओपनिंग ब्रैकेट डबल कोटेशन, देन फर्स्ट मैसेज वेलकम टू VBA कोडिंग, ये तो कॉमन है, रीड तो नहीं किया हमने। अब इसको क्या करना, मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। फर्स्ट क्या लिखना चाहता हूँ, माय नेम इज, जो नेम आपने प्रिंट किया रहते वर नेम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सपोज फ्रेंड्स, चलिए माय नेम इज कोटेशन क्लोज, देन कंटिन्यूअसली प्रिंट करने के लिए वेरिएबल के अंदर तो डाटा रखा हमने, कॉन्करेंट ऑपरेटर को वेरिएबल, सो वेरिएबल नेम क्या है, SNAME, बस इतना ही। ओके, अगर कॉलन वगैरह लिखना है तो आवर इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रामर। नेम प्रिंट करने के बाद क्या है, माय ट्रेड, लेकिन जरूर ये है ट्रेड, इंस्टीट्यूट वही मैसेज बॉक्स, इंस्टीट्यूट इज, वेरिएबल नेम इज इंस्टीट्यूट। Okay friends, now here and sub, अब मैं ये sample2 को रन करना चाहता हूँ, तो कर्सर क्या करना है, sample2 और end sub का बीच में रखना है कहीं भी। If you want to execute the sample2 sub procedure, you must and should put the cursor in between sub sample and end sample। तो मैंने बीच में रखा है, आप अपना मोबाइल को जूम करके देख सकते हो। फिर ये रहा, ये सिंबल प्रेजेंटेशन में ये लेकर जाना भूल गया मैं, दिस इज वन रन सिंबल, तो इस पर क्लिक कर सकते हो। देखिए सेकंड प्रोसीजर को रन कर रहा हूं मैं, एंटर योर नेम, ठीक है, MAM सीनू ले दो,
Chinu. Then trade Copa Institute NSTI Allahabad. Enter या तो ओके. देखिए, वेलकम टू VBA कोडिंग. फर्स्ट, my name is Chinu. My trade is Copa. My institute is NSTI Allahabad. So friends, what I'm telling here, this is another procedure. So here we are reading the value through keyboard, then printing using that message box. Then third one, reading the data through keyboard and print the data in MS Excel sheet. So that purpose is coding. Okay, sub sample 3. Name sname name trade as string. हम रीड कर रहे हैं कीबोर्ड से, फिर एक्सेल शीट पर प्रिंट कर रहे हैं हम. A1 पर वेलकम टू VBA कोडिंग, A2 पर कृपया मेहरबान से एक्सेल शीट पर देखिए. मैं एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ. A1 पर जा रहा हूँ मैं. अभी कोई डाटा नहीं देखा. देयर इज नो डाटा अवेलेबल इन माय MS एक्सेल शीट. शीट पर अभी कुछ भी डाटा नहीं है. ओके, सो फ्रेंड्स, पहले मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको ताकि रिजल्ट देखने के लिए. तो डिस्प्लेइंग सारे चीज में क्या कर रहा हूँ मैं, टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम द्वारा ही मैं प्रिंट करना चाहता हूँ. अभी ब्लैंक स्क्रीन है. सब प्रोसीजर, तो मैं क्या करूँ, डेवलपर विजुअल बेसिक जो मैंने थियोरेटिकली समझाया लेफ्ट पोर्शन में, शीट 1 शीट 2 शीट 3 दिस वर्कबुक. मैंने अभी शीट 1 25 डबल क्लिक किया, ये विजुअल बेसिक एडिटर आ गया है. SCB स्पेस सैंपल मींस सब प्रोसीजर सैंपल. दिस वन इज सैंपल 2 सैंपल 3. अभी मैं सैंपल 3 को रन करना चाहता हूँ. तो मुख्य उद्देश्य ये सब कीबोर्ड से 3 वेरिएबल नेम ट्रेड सिटी सॉरी इंस्टीट्यूट को एक्सेल शीट पर लेकर जा रहा हूँ. एडिटिंग का योर इंस्टीट्यूट नेम, देन सॉरी रीड करने के बाद वेलकम टू योर नेम, देन नेम ट्रेड वगैरह ये सारी चीज. A1 पर हेडिंग वेलकम, A2 पर उसी रो में B2 पर आप से देंगे अभी वो प्रिंट कर देगा. ट्रेड फिर के अंदर जो ट्रेड हम देते हैं वो प्रिंट कर देते हैं. रन करके देखते हैं. कर्सर मैंने बीच में रखा, तो मान लीजिए कर्सर बीच में नहीं रखा मैंने, आउट ऑफ द सब प्रोसीजर, सब प्रोसीजर का बाहर रखा मैंने, एंड सब का आगे. अगर मैं रन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ऑब्जर्व, क्योंकि उस टाइम VBA कंफ्यूजन में आपका पास 3 सब प्रोसीजर है, कौन सी सब प्रोसीजर को आप रन करना चाहते हो. तो इसलिए ये डायलॉग बॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, सब प्रोसीजर 3 सैंपल 3 रन, ये रन कर देगा. इसलिए मैं हमेशा वो सब प्रोसीजर का बीच में कर्सर रखिए, सीधे उस प्रोसीजर को रन करते हैं वो. एंटर योर नेम, ठीक है. सो यू कैन गिव योर नेम, एंटर योर ट्रेड, डोंट मेक एनी कंफ्यूजन. जो लिखा हमने कोडिंग के अंदर वही डिस्प्ले कर रहा है इनपुट बॉक्स का. CSA, एंटर योर इंस्टीट्यूट NSTI जयपुर. ओके, बात एक है, यू कैन प्रेस एनी. प्लीज एक्सेल शीट पर जा रहा है. पहले तो कुछ नहीं था, अब ये फॉन्ट साइज ज्यादा हो गया है, रो हाइट बढ़ा देते हैं हम. एक्सेल शीट में गया, रिटर्न लाना, वेलकम टू VBA कोडिंग, योर नेम, इसको बढ़ाना है. फर्स्ट 2 कॉलम्स को काम में लिए ना हमने, एक तो ये, दूसरा B. ये है हमारा आउटपुट, ठीक है. सो फ्रेंड्स, वेलकम टू VBA. फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है मैसेज, मतलब A1 का अंदर, A2 में योर नेम, फिर B2 में ममता गोयल जो दिया हमने, योर ट्रेड इज दिया CSA, योर इंस्टीट्यूट इज NSTI जयपुर. अब दोबारा रन करके देखते हैं हम.
अगर आपको कंफ्यूज हटाने के लिए मैंने मिटा दिया, बिल्कुल खाली है. There is no data in MS Excel sheet. I remove data. Once again, I want to run my procedure. So, what can I do? उसके लिए मैं क्या करूं? डेवलपर पर गया, विजुअल बेसिक, देन सैंपल सब प्रोसीजर. कर्सर अभी बीच में रहेगा. पहले क्या क्या? फर्स्ट टाइम पुट द कर्सर इन आउट ऑफ द सब प्रोसीजर. सब प्रोसीजर मैंने रन किया, डायलॉग बॉक्स आ गया. लेकिन सब प्रोसीजर सैंपल 3 को रन करना चाहता हूं तो बीच में कहीं भी रख सकते हैं कर्सर. I put the my cursor in between this sub procedure sample 3 and then sub. Now I want to run. मैं अभी रन कर रहा हूँ. Enter your name. आप दोबारा you can give any. ठीक है. तो ये अन्वेक्षा KSH. Enter your trade. Advanced diploma in IT. ब्रैकेट में सपोज मान लीजिए IBM. एंटर योर NST लिख सकते जैसे नोएडा. कैन गो एंड सी द रिजल्ट ऑन द MS Excel शीट. कृपया एक्सेल शीट पर जाइए, देखिए. वेलकम टू VBA कोडिंग. पहले कुछ नहीं था. मैंने I was remove all this data ना, मैं डाटा मिटा दिया. Welcome to VBA coding. Your name is Anveksha. Your trade is edited IBM. Your institute name is NST for women, Noida. अब ये नहीं, इतना नहीं. अभी इन तीनों को क्या है, बार बार मीन्स हम काम में ले सकते हैं. वो चीज आपका सामने लेकर हम देखिए. I have 3 means sub procedures. So I want to write a main procedure. So SUB, PROC, कुछ भी XYZ. ये क्या करना चाहता हूँ मैं फर्स्ट प्रोसीजर के अंदर, तो वो उसको कॉल करना चाहता हूँ मैं. तो MSG BOX इसमें भी मैसेज बॉक्स के अंदर क्या है, I am using means procedures in VBA. मैं VBA का इन VBA ये लिखा है सेंटेंस, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करेगा. लेकिन मैं इस प्रोग्राम को रन करते समय पर XYZ प्रोसीजर को, वो सब प्रोसेस को मैं इधर से ही रन करना चाहता हूँ. तो दैट इज कॉलिंग फंक्शन प्रोसीजर कॉलिंग. सो प्रोसीजर कॉलिंग इज नथिंग बट सिंपल वे, आसान तरीके से कॉल सकते हैं. क्या करना है सर जी? सिंपली इस पर्टिकुलर सब प्रोसीजर का नाम ही लिखना है बस. SAMPLE. दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर सैंपल कॉलिंग. मतलब सैंपल प्रोसीजर को हम रन करना चाहते हैं. दूसरी बात क्या है? SAMPLE सैंपल 2. तीसरी क्या पड़ा है हमारे पास? SAMPLE सैंपल 3. तो देन और एक मैसेज बॉक्स लास्ट में मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं. फन विद VBA प्रोसीजर्स. मतलब क्या, इस मेन प्रोसेस के अंदर XYZ के अंदर सिर्फ ऑन 2 मेन सेंटेंस लिखा हमने. मैसेज बॉक्स, पहली मैसेज बॉक्स एंड आखिरी मैसेज बॉक्स, ये दोनों इसी प्रोसीजर के अंदर है. व्हाट आई एम राइटिंग हियर, द मेन सब प्रोसीजर XYZ contains individual statements. Message box, there are 2 message box. First message box, I am working with procedures in VBA. The last one is fun with VBA procedures. In middle of these 2 lines, 3 lines are there: sample, sample 2, sample 3. Sample means I am calling the sub procedure sample. Sample 2 means I am calling sub procedure sample 2. Sample 3 means I am calling the sub procedure 3 for execution purpose, run purpose. अब देखते हैं. तो अभी हिंदी में फ्रेंड्स प्लीज लुक. ये XYZ मेन प्रोसीजर के अंदर ये लिखा है सिर्फ 2 असली लाइंस. MSC बॉक्स, I am working with procedures in VBA. फिर बाद में लिखा सैंपल 3, ये सब प्रोसीजर्स को कॉल कर रहे हैं हम. फिर आखिर में मैसेज बॉक्स,
XYZ का इंडिविजुअल स्टेटमेंट है ये, इसी का अंदर फंक्शन विद VBA। ये 5 लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन बीच में सैंपल टू सैंपल 3 सब प्रोसीजर्स है। हम एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर को कॉल सकते हैं। सो कर्सर अंदर रखा बीच में। सो नाउ we will try to run execute this one. So look at dear friends, small error is there, कि SAMPLE गलत लिखा है, SAMPLE sample2 spelling mistake। debugging, that is called as debugging, yellow color it will indicate। so this one is reset कर रहा हूं मैं। then after that, and okay, I am working with procedures in VBA। welcome to VBA coding, my name is Vandana। क्या कर रहा है, फर्स्ट प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने लगा, हमसे पूछा नहीं, सिंपल मैसेजेस। माय इंस्टीट्यूट नेम इज NST नोएडा, ये सैंपल 1 का प्रोसीजर है। अब NST नोएडा के बाद देयर इज नो मैसेज बॉक्स इन द सैंपल 1। अभी देखा आप लोगों ने सैंपल 1 इधर पड़ा हुआ है, वो सिर्फ 4 मैसेजेस है बस। अब इसके बाद सैंपल 2 लिखा है, सैंपल 2 सब प्रोसीजर को कॉल करेगा। अब देखिए आपसे पूछने लगा एंटर योर नेम, you can give any number। काजल राघव, मान लीजिए काजल एक CSB स्टूडेंट भी है, कोपा स्टूडेंट, सपोज काजल। देन एंटर योर ट्रेड, कोपा। एंटर योर इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट नेम चेंज, NSTI चेन्नई। अब देखिए सेकंड सब प्रोसीजर को कॉल किया इन्होंने, हमसे मांगा 3 डिटेल्स। अब वेलकम टू VBA मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा हमने, तो वो प्रिंट करने लगा काजल राघव, कोपा, NST चेन्नई, हो गया। अब तीसरी सब प्रोसीजर सैंपल 3 को कॉल कर रही है। अब इसका रिजल्ट एक्सेल सीट पर आएगा, अभी देखते हैं हम, ठीक है। सो एंटर योर नेम, you can give any your name, okay, विजयेंद्र कुमार, ट्रेड CSA NSTI, भी दे दीजिए NSTI हैदराबाद। फन विथ VBA प्रोसीजर क्या है, जो मेन प्रोसीजर के अंदर लास्ट मैसेज बॉक्स, लेकिन रिजल्ट देखिए एक्सेल सीट पर हमने दिया विजेंद्र कुमार CSA NSTI हैदराबाद। तो क्या हुआ, तीसरी सब प्रोसीजर को कॉल करके इंप्लीमेंट किया है। अब मेन प्रोसीजर के अंदर क्या है, लास्ट में लिखा हमने फन विथ VBA प्रोसीजर्स, वो एग्जीक्यूट किया है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए, ये देखिए अगर आपके पास नहीं तो मैं अब इसको क्लियरली एक्सेल सीट पर लेकर आ सकता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। पहले मैंने क्या किया है, प्रेजेंटेशन से लेकर आया हूं मैं इधर। अब लेकिन जो VBA के अंदर दिखाने के लिए अगर डाउट है क्या हो रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट वन प्रोसीजर। फॉन्ट साइज थोड़ा कम करेंगे, मतलब ज्यादा होने की वजह से दिखाई नहीं देगा। increase the row height also for clarity purpose, क्लियरली देखने के लिए ओके। सेकेंड वन कहां से लेकर आऊं, ये रहा विजुअल बेसिक। तो स्लाइड का अंदर देखा हमने, वही मैं इधर दिखा रहा हूं। अब आप क्लियरली फोटोज खींचने के लिए ये प्रोसीजर 2 हो गया है। अब प्रोसीजर 3 नहीं तो बगल में लेकर आता हूं, ये है सैंपल 3। ये है प्रोसीजर, एक्सेल सीट पर प्रिंट कर रहा है। अब मेन क्या लिखा है, अगर दूर लेकर गए हैं पास में लेकर डियर फ्रेंड्स,
दिस इज द प्रोसीजर, ये सेकंड प्रोसीजर इनपुट से रीड करके फिर मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर रहा हूँ। थर्ड प्रोसीजर में क्या क्या है, से नेम प्लेट सिटी को इंस्टीट्यूट को रीड करके एक्सेल शीट पर प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अब चौथी फोर्थ वन में कंट्रोल एक्सेल शीट पर लिख रहा है, लुक एट हियर। ये क्या है लिखा है, सिर्फ प्रोसीजर नाम लिखने के वजह से हम प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वन इज द मेन प्रोसीजर मान लीजिए, ठीक है। सो मेन प्रोसीजर के अंदर एमएस बॉक्स मींस मैसेज बॉक्स, मेन प्रोसीजर कर्सर बीच में रख के रन करते समय पर सबसे पहले आई एम वर्किंग विद प्रोसीजर एक मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करेगा। फिर सैंपल, सैंपल एक वेरिएबल तो है नहीं इसके अंदर, डिम से डिक्लेयर नहीं किया, फिर वेरिएबल नहीं तो क्या होगा, एक रिजर्व वर्ड भी नहीं है, तो वो इंटरनली चेक करेगा फ्रैक्शन सेकंड्स के अंदर। व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम ना, देन कंप्यूटर व्हाट कैन डू, VBA Excel, it will try to check it. First of all, the procedure will execute one by one at whole, line by line, at a time, सारे मतलब एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसीजर को लिखते हैं, ऑलरेडी डिस्कस है। बट व्हाट आई एम टेलिंग हियर, मैं क्या बताना चाहता हूँ, सब मेन प्रोसीजर को रन करते समय पर पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, आई एम वर्किंग विद प्रोसीजर्स इन VBA, एक मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले किया, देख लिया हमने, ओके दबा दिया। फिर सैंपल आ गया, सैंपल आने के बाद इधर मैसेज बॉक्स तो है ही नहीं, सॉरी टिम स्टेटमेंट, सैंपल एक वेरिएबल नहीं है। फिर और क्या है, कीवर्ड्स के अंदर चेक करेगा, ये रिजर्व वर्ड है क्या, कीवर्ड नहीं है। तो फिर इस प्रोसीजर से बाहर आने के बाद कोडिंग में से ऊपर नीचे से कहीं भी सैंपल नाम से एक सब प्रोसीजर है क्या ढूंढेगा, तो हमने लिखा है सब सैंपल, तो मिल गया। कंट्रोलर उसके अंदर जाके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कंट्रोलर विल बैक टू हियर, मतलब यह क्या है, इसको एग्जीक्यूट किया है सैंपल को, फिर वापस आ गया, सैंपल का आगे क्या लिखा है, सैंपल 2, फिर अगेन इट विल चेक अनदर सब प्रोसीजर, इधर सब प्रोसीजर मिल गए उसको, इस सब प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन मेन प्रोग्राम, मेन प्रोसीजर सैंपल 2 जगह से गया सैंपल, फिर सैंपल 2 के पास आके इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें क्या लिखा हमने, सैंपल 3, सैंपल 3 नॉट ए वेरिएबल, नॉट ए रिजर्व वर्ड, फिर बाहर आने के बाद फिर मैं ढूंढेगा, सैंपल 3 नाम से सब प्रोसीजर है ही नहीं है, लिखा है हमने, तो इसके पास जाके फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर इस सबसे फिर वापस सैंपल प्रोसीजर के अंदर आएगा कर्सर, आने के बाद सैंपल 3 का आगे क्या लिखा है, मैसेज बॉक्स फन विद VBA प्रोसीजर, तो ये मैसेज बॉक्स एज इट इज प्रिंट करेगा। फिर आखिर में कुछ है नहीं, एंड सब। इतना नहीं, हमने कहा एक सब प्रोसीजर को प्रोग्राम के अंदर कहीं भी काम में ले सकते, कितना बार भी ले सकते, यू कैन कॉल ए प्रोसीजर और फंक्शन एनीवेयर एंड एनी टाइम। अरे मैं ये लिखने के बाद फन विद फंक्शंस मैं दोबारा सैंपल लिख सकता हूँ, उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, रन कर रहा हूँ मैं भी। लास्ट एंड फाइनली और समय समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स, लुक एट हियर। सो मैं फंक्शंस में गया, ये मिटा रहा हूँ सारे, अभी देखना है फाइनली, लुक एट हियर विजुअल बेसिक, लास्ट वन कर्सर रखा मैंने, रन, देखिए आई एम वर्किंग VBA, तो VBA कोडिंग ये डिस्प्ले नहीं किया, क्यों नहीं किया, जो मेन प्रोसीजर के अंदर ये लिखा है, क्या लिखा है, प्रोसीजर्स इन VBA, यही तो डिस्प्ले किया है। ओके, ओके करने के बाद क्या करेगा, सैंपल, ठीक है, सैंपल में क्या लिखा हम, ये रहा, वेलकम टू VBA कोडिंग, इसलिए वेलकम टू VBA कोडिंग। देन माय नेम इज वंदना, ये प्रिंट किया नेक्स्ट बॉक्स में, फिर माय ट्रेड इज गोपा, ये प्रिंट करके, फिर माय इंस्टीट्यूट इज NSTW नोएडा, फिर ये हो गया समाप्त। कंट्रोलर फिर मेन प्रोग्राम फिर जाएगा, फिर मेन प्रोग्राम में जाने के बाद सैंपल 2 लिखा हमने, देखिए इधर सैंपल 2, सैंपल 2 कहा इधर, सैंपल 2 में 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एंटर योर नेम, वो पूछने लगते हैं, तो फिर अभी you can give any name, okay, so you can write
Annu Rani. Guru sir, we are nearing the time. Okay, sir. So I mean, only 1 minute. 1 minute. Finish. Trade is CSA. Institute is NSTI Noida. Our time is finished. तो सैंपल 2 का अंदर जाके तीनों पूछने के बाद प्रिंट करने लगा है माय नेम इज सॉरी वेलकम टू द बेबी कोडिंग इधर लिखा हमने, फिर माय नेम इज अनुरानी जो हमने दिया है, फिर ट्रेड सीएससी, देन आफ्टर दैट एनएसटी नोएडा. So then after finishing up this one we are calling function 3. So function 3 this one again asking enter your name Ashok Kumar CSA, institute is NSTI UMBI मुंबई. देखिए सैंपल 3 प्रोसीजर रन करके इधर प्रिंटिंग एक्सेल शीट पर हमने लिखा एक्सेल शीट पर प्रिंट करने के लिए, फिर वो भी कंप्लीट होने के बाद मेन प्रोग्राम में आ गया है. तो लास्ट में लिखा माय मैसेज बॉक्स फन विद वीबीए प्रोसीजर, वही लिखा फन विद, लेकिन इसका आगे क्या लिखा हमने चेंज किया सैंपल 1. सैंपल 1 में क्या लिखा हमने दोबारा वेलकम टू वीबीए कोडिंग माय नेम इज, इस सारे बॉक्सेस में डिस्प्ले करेगा. इसका मतलब क्या, आपको एक प्रोसीजर को जितना बार चाहिए उतना बार कॉल कर सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो एक कोडिंग के अंदर. दैट इज द एडवांटेज ऑफ द प्रोसीजर एज वेल एज फंक्शन. मींस कल का क्लास में प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं, वी वांट टू कवर प्रैक्टिकल पोर्शन अप टू. कल का क्लास में है कैसे रन करना है, कॉल करना है, पैरामीटर्स इत्यादि चीजों को हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू हु आर अटेंडिंग. सर थैंक यू सर, थैंक यू सर.